अच्छा, एक और अच्छी चीज थी कि ही वॉज वेरी क्लासी, कि एकदम ऐसे चेयर खसकाना, कार का दरवाजा खोलना। अब मैं ठहरी टिपिकल बैंगलोर में रहने वाली अभी, तो वो चेयर खसकाया, मैं आगे निकल गई, ही पुल्ड द डोर, आई ओपनड द अदर डोर ऑफ द कार. So that those were some funny instances because he was trying to show what a gentleman he is, good at. And I used to say बहुत लड़कियों से मिलके आया है ये, बहुत polished है. But then by the end of the conversation, I don't know why, but I wanted to meet him again. And then we chose some hip place in Bangalore, क्योंकि Bangalore की you know there are very good places with some slow good music in the background. And he told me कि तुम जगह कोई भी choose करो, म्यूजिक ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए. एंड ही चोज द प्लेस विद एक्सट्रीमली लाउड म्यूजिक, एक्सट्रीमली पेपी क्राउड, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ ना सुन पाए. But then we had one of the best date, and there at one point I told him that if things actually end up good, then this is probably the night we'll remember, because it was not a place जहाँ पे किसी बंदी को आप डेट के लिए लेके जाओ जिसको आप जिसके साथ आगे फ्यूचर देख रहे हो. बिकॉज नजर अपनी बंदी को छोड़ के आसपास सब तरफ जाएंगी, तो हॉटनेस कोशेंट काफी हाई था वहाँ पे. बट द गाय एंडेड अप लुकिंग एट मी, एटलीस्ट प्रिटेंडेड टू लुक एट मी, एंड दैट वाज अ गुड जॉब. ट्रिप हम लोगों ने प्लान किया, एंड देन वी ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर टू ऊटी, एंड वी हैड ए रियली अमेजिंग टाइम. 2 days there, and in between then when things started moving, and I was really jittery, frankly speaking, because कि mom and dad से किस तरह से बात करें, and then you know the siblings are always helpful, so I talked to my elder sister. मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार things are going well and it's clicking, and you know what I mean. मैंने कहा यार mom dad से एक बार बात करो, and they will also speak to Garima's parents, and then मतलब to my surprise I was expecting कि ठीक है थोड़ा सा मतलब शादी ब्याह का माहौल होगा, मतलब they will say नहीं हम लोग के, they were also very okay, amazing, ठीक है बात करते हैं and all. So then things started moving, then they talked, and parallelly हम लोगों की भी love story, it took a course for the last probably 5.5 months. It was all amazing. I met some amazing friends of Garima's also in Bangalore. We had an amazing time. हम लोग काफ़ी सारे आसपास गए. Bangalore was probably the only city in India, the only major city in India जहाँ पे उतना stay नहीं किया था. Otherwise I have stayed and traveled all across world in India. But ठीक है, it was meant to be for someone very special, and I believe the entire thing has happened. Whatever has taken its course, it was really special and amazing. So it was 4:45 in the morning, and he ended up proposing to me जब दिमाग काम बिल्कुल नहीं कर रहा था, and but still I had that flutter behind my ears and those butterflies, and honestly those goosebumps that this is it. I mean मेरी एक दिमाग में अगर checklist कभी बनाई होगी, so now this is on a serious note Pavan, that मेरे को एक भी जगह क्रॉस नहीं करना पड़ा. एक बार मैं ऑफिस में था, एंड इट वाज वेरी लेट, अराउंड 10:30 11 ऑलरेडी इट हैज हैपेंड. हम लोगों का प्लान था कि 8 बजे शाम को मिलेंगे, नहीं हो पा रहा था मिलना, तो 10:30 हो गया. यू नो हाउ कॉर्पोरेट लाइफ इज ऑल अबाउट. बट उसके बाद में अगेन बैंगलोर, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड अगेन सम स्ट्राइक, सम शिट हैज हैपेंड देयर, एंड आई डिड नॉट गेट एनी कैब. 3-4 कैब वालों moment I booked first cab, I talked to him. I said मेरे को यहाँ जाना है. It was 11 in the night. He said सर वहाँ नहीं जाऊँगा. I talked to the other one, सर नहीं जाऊँगा. I talked to the third one, he said नहीं जाऊँगा. मैंने भी कहा चलो यार ठीक है, आज पॉसिबल नहीं हो रहा, कल जाए. I called her and told her, मैंने कहा यार देख नहीं हो पा रहा है पॉसिबल. And she was furious man. I can tell you, she was furious. तुमने प्रॉमिस किया था 8 बजे, तुम्हारा प्रॉमिस नहीं रहता है. And for next half an hour I decided, मैंने कहा यार पैदल भी चल के जाना होगा, मिल के आऊँगा. Otherwise it's going to be really crazy. He's as crazy as me. He lets me be what I am,
and I just ended up falling in love with him over the due course, and that's it. So he made me fall in love, he made me say yes, and he made me move from Bangalore to Delhi. I absolutely hated Delhi. मेरे को उसका वेदर नहीं पसंद, मेरे को वो शहर नहीं पसंद, मेरे को वहाँ के लड़के नहीं पसंद, एंड सो आई हैव फॉलन फॉर अ गाय फ्रॉम दिल्ली. और उसने मुझे प्रॉमिस किया है ऑन कैमरा, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे 1 साल के लिए दिल्ली जाना, उसके बाद मैं बैंगलोर आ रही हूँ, ऐसा उसने मुझे यही बोल के उसने मुझसे हाँ बुलवाया है. But it doesn't matter, it's Bangalore or it's Delhi. What matters is that you are right next to me by my side. So wherever it is, it's you and me. She's very sensitive, or she's very particular about how you walk, how you talk and how you behave. And मैं जानबूझ के ना कई बार उसके सामने थोड़ा सा टपोरी वे में एक्ट करता हूँ, because I know this really irritates her. And the most amazing thing, I'll tell you what I do. So basically जब भी मैं उसे मिलने जाता हूँ ना, तो मैं कोई पुराना बहुत ही टपोरी टाइप का सॉन्ग ना बार बार रिपीट करता हूँ, या कोई हनी सिंह का रैप वैप कर देता हूँ उसके सामने. तो एक दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, शी वॉज एट हर होम एंड मैं लिफ्ट से निकल के आया, एंड देन आई स्टार्टेड रैपिंग उसको, बिकॉज उसको हमेशा से ये ना कि मैं उसको सामने हमेशा बोलता हूँ यार दिल्ली की कुड़ीज बहुत हॉट होती हैं, यो उसको हमेशा नहीं बैंगलोर इज बेस्ट, बैंगलोर इज बेस्ट. तो मैं एक दिन उसके सामने रैप करता हुआ गया. सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो उसको. इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसमें म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता का क्राउड. लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है but I doubt. So I was rapping in front of her and she said ये क्या लगा के रखा है तुमने, मतलब तुम्हें दिख नहीं रहा है आसपास, मतलब सोसाइटी वाले लोग क्या कहेंगे. And I was like, मैंने कहा this is the way I was about to propose you but you just stopped me in between. But anyways, I'm going to propose you that I'm going to take you right from the center of Bangalore to Delhi and I'll make sure कि 1 साल के अंदर तुम्हें दिल्ली से प्यार हो जाएगा. And then she said to me right on my face कि अगर तुम ऐसे propose करने वाले हो I'm going to say no. मैंने कहा तुम इस चेहरे को ना कैसे बोल सकती हो. So I wanted to meet Pavan because मेरा एक accident हुआ था and I wanted to show him I had some scars and मैं चाहती थी कि before taking any decision उसको पता रहे सब कुछ. Of course we were dating by then, तो उसको पता था but I wanted him to see. So at night 1:30 we were on phone call और मैंने उसको WhatsApp किया कॉल रखने के बाद. तब तक वो मेरे घर नहीं आया था. That you know what next weekend तुम मेरे घर आ सकते हो. And उसको honestly ऐसा लग रहा था कि नहीं it's too early, मुझे किसी लड़की के घर नहीं जाना चाहिए अभी, सब कुछ इतना awesome चल रहा है. और उसने मुझे बोला I don't think it's a good idea to visit your place. Now this was too much of शराफत कि एक लड़की इनवाइट कर रही है कि भाई तू घर आ, and he's like no मेरे को घर नहीं आना अभी. So I thought I don't know what is going on in his head, that what is he thinking. Then मुझे उसे बताना पड़ा कि no there's something personal I want to talk. And then of course word personal strikes something कि पता नहीं कैसा है, क्या है, कैसी लड़की है. So he wanted to judge and then उसने मुझे काफ़ी convince किया कि क्यों उसको मेरे घर नहीं आना है. And then I had to tell him the reason. So this is one of the funny incidents wherein मेरी self respect की धज्जियाँ उड़ चुकी थी कि मैं एक बंदी होके उसे invite कर रही हूँ कि भाई तू घर आ, and वो कह रहा है नहीं मैं नहीं आऊँगा. तो आप देख सकते हो कि कौन ज़्यादा शरीफ है हमारे बीच में. पर फिर एक बार जो आना हुआ तो बाय गॉड डोरबेल बजनी आज तक बंद नहीं हुई है. ये मेरा तेरे को टपोरी मांगता ना, तेरे को टपोरी पसंद है ना, चल ये टपोरी आज तेरे को अपना दिल देता है. देख लेना है तो रखना है तो रख, वरना तेरे को लेके जाऊंगा मैं. दुल्हन तो तू मेरी ही बनेगी. तो मेरा प्रपोजल तो तू मानेगी मेरे को पता है. कॉन्फिडेंस तो इस टपोरी में भी उतना ही है. तो चल लेट्स गेट मैरिड एंड शादी करते हैं. लव यू बेबी.